Abhishek sir, हाँ जी. you can start. I've started the recording. Okay, sir. Recording has started. Yeah. Okay. So first of all, a very good morning to all the students. I guess today's we have electronics and EN students. Okay. So guys, the agenda is very clear. Today we are going to sum up some very important topics of your InfyTuki exam. And side by side, I'm also covering the last two topics which you are left with in the previous class. Okay. So without wasting any more time, let's start the lecture. So in the last class, when Parul sir has taught you, I guess you are left with formatting result set. So the agenda of teaching this particular topic to all of you is very simple. Okay. Now as of now, you have seen that you have executed your very first query. In this, the syntax will be from something like this: select any column from a single table. Let's suppose the table name is S1, and then you have gone through with where the condition is, let's suppose if we are representing a as an age, so that age must be greater than 40. Okay, now you have seen these three important keywords which is select from where in your last query. Now ultimately, when you execute this query on some online portal or maybe through some SQL interpreter, then you get some sort of result in the form of a table. जो आपको result मिलेगा, that will be in the form of a table. Let's suppose I am getting a simple result. The name of the table is S1. It is A, and it has all those members which are greater than 40. So let's suppose 50 and 60. Maybe another is 70. So this is the ideal result set that we get from executing this query. Now the agenda is, if I want to manipulate my result set, what I am saying, अभी तक हमने देखा है कि हम कोई भी query को कैसे manipulate कर रहे हैं, how we are putting select, how we are putting from, how we are putting from. Now after executing the query, the kind of result that we are getting, if we want to manipulate that result, then we must use some sort of keywords so that our result set will be formatted. So that is the main agenda of teaching this particular topic. So here we are going to discuss three keywords. One is distinct clause, another one is order by, and we are also going to discuss the third, limit and offset. Limit and offset. I think the ideology is clear here. What is the need of this particular topic, formatting result set? To manipulate or to modify the result table that you are getting according to the wish in which you want to require it. Okay, so let's see. First of all, we are seeing distinct clause. So as the definition says, this clause when applied over a column name filters out those tuples which have duplicate values in the specified column. So I guess you all are familiar with the query that we have written, or with the general syntax of the query. In this query, the only new thing is distinct. Only new thing is distinct. So let's see the explanation. It's very simple. That if in your result set we have, let's suppose, two tuples, the name, two columns A and B, and in this we have tuples like the value of A is 47 and the value of B is 45. Let's suppose the value of A is again 47 and the value of B is 45. Let's suppose we are saying there is one more tuple. The value of A is, let's suppose, 46 and the value of B is let's suppose 48. Here I am writing the value of A is let's suppose 49 and the value of B is 45. Okay, now when you are going to apply any query over here, let's suppose I am writing let's query select A comma B from, and the name of the table is, let's suppose, S1. I'm writing here S1. So what I'm going to do, complete table will be selected, or it will be written as select star from A. Complete table will be selected. But if I want only unique result from my table, if I want only unique result from my table, अभी देखो यहाँ पर there are two tuples which are having same value 47 45 47 45. That means this distinct clause, if I'm attaching here, तो अगर मैं यहाँ distinct clause attach कर देता हूँ something like this: select distinct A comma B, something like this. So what is going to be happen? We are getting distinct result from this. That means now the current table we will get as
A, B, we are getting 47, 45, we are getting 46, 48, and we are getting 49, 50. That means जितनी भी duplicacy हैं इस table के अंदर, all duplicacy will be relieved, all duplicacy will be released with the help of this distinct clause, और कोई एक tuple select होके आपकी final table में attach हो जाएगा. So this is the way my distinct clause will work. So what is the definition? This clause, when applied over a column name, filters out those tuples which have duplicate values in the specified columns. So you can say if you want to if you want to lower down the duplicacy in your table, then distinct can be used for that. I hope distinct is clear to each and everyone. Parul sir? I'm looking for the reply. Is the particular topic clear to all of you? Distinct is clear. Distinct clear. Yes. Rohini, thank you so much. Priyanshi, Kavya, sir, they are writing yes. It's clear. Okay. Fine. Let's solve this question now. See the query and solve the question. And please be particular in the question. Paper pen leke solve karna. All of you, there are 90 students in our class. I want response from all the 90s. So सर ने कंसेप्ट बिल्कुल बता दिया है, डिस्टिंक्ट क्या काम करता है. बाकी की नीचे की क्वेरी आपने बहुत बार सॉल्व कर ली थी उस दिन, तो ऊपर वाली क्वेरी में बस आपको आउटपुट में फॉर्मेटिंग करनी है. तो मेन जो टारगेट है अभी हमारा फॉर्मेटिंग द रिजल्ट सेट, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे डिस्टिंक्ट काम करेगा, यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड. सो टेक योर टाइम. काव्या गिव द फर्स्ट आंसर व्हिच इज सी सर. Okay. At least you must try each and every query of this presentation. So that in the due course of time, when we give you multiple questions, it will be very easy for all of you to solve it in a very So particular time. maximum of them are replying with the answer C. Priyanshu, Nishu, Rohini, Priyanshi, Saxena, Anshuman, Ritika, Shubham, Prakash, Malviya, Pravesh, Shivam Verma, Harshit, Ujjwal, everyone. I'm very happy to see that maximum of them are replying, and no, back to back they are giving the answers. So it's very good that they all are interactive students, no, interactive audience, and they are giving answer. And so all of them are giving C answer, sir. Okay. So absolutely correct. The correct answer is C. So I hope query is very simple, and you need to just apply distinct clause over name and marks. Okay. So those students who have not given the answer or still you have any kind of doubt, so let's see. So what we are going to do, we are going to see the from part. कहाँ से हमें data select करना है? We have to select the data from student. तो हम student के अंदर आ गए. Then where constraint will be applicable, and it is saying department name is equal to IT or department name is equal to MCA, and marks must also be between 42 and 50 and name not like A%. इसका मतलब A से start होना चाहिए, ठीक है, और A से start नहीं होना चाहिए because we have not like. So let's start with this first condition. Name is equal to IT, so it is not going to be selected. No. Name is equal to IT, yes, but marks are not between 42 and 50. It is also not going to be selected. It is not going to be selected. It is not going to be selected. Again, same condition. IT, yes, but marks are not in between 42 and 50. So we are simply skipping this as well. Okay, now it is saying department name equal to IT or MCA. Yes, MCA is there. Marks between 42 and 50. Yes, correct. And name not like A. Yes, John is also not started with the small a. So this tuple will be selected. Then similarly, this tuple will be selected, and similarly this tuple will be selected. But what they are saying? They are saying distinct name and marks. They are saying distinct name and marks. So John name is common, but their marks are distinct. One is 43 and one is 42. So John 43 will be selected. Maria 42 will be selected, and John 42 will be selected. So the correct answer is C because of the said explanation, right? So I hope let's move to the next topic. Any confusion till now? Any confusion? If you want, anybody wants any kind of explanation, we will be happy to help you in that case, because once we go ahead, तो आपको उसी तरीके से फिर query solve करनी पड़ेंगी. तो in that case, अगर अभी भी कोई confusion है, then please ask. I'm not getting any responses, sir. Okay, so let's move to the next. Yes. Okay, now the next is order by clause. Okay, तो हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो वी सेट फॉर्मेटिंग रिजल्ट सेट का क्या मतलब है कि वी वांट मैनिपुलेशन इन द रिजल्ट सेट. ठीक है, अब रिजल्ट सेट
अगर randomly आ रहा है, if result set is coming randomly, that means you need to follow some sort of arrangement for my data set, so that data will be either in ascending order or maybe in descending order. So for that we are using order by. Order by का मतलब ही होता है आपके डेटा को ascending order में या descending order में arrange करना. Okay, it is not mandatory that you always put order by, but yes, if you want to make sure that your data must be in a very similar fashion, ताकि सबको डेटा जो जो जाए, जहां जहां पर भी डेटा जाए, वो equally distribute हो. In that case you need to maintain an order, and that order will be maintained by order by clause. Okay, so let's see. Order by when applied over column or columns. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ order by आप एक कॉलम पे लगाओगे. You can put order by on multiple columns. Okay, that sorts the result in ascending. देखो, अगर हम ascending नहीं भी लिखते, then by default the data will be arranged in default, and which is ascending order. बिना order by clause लगाए भी आपका जो डेटा आपको रिटर्न होगा, that will be in the ascending order form. और अगर आपको explicitly data you want in descending order, then you need to put a keyword, and for that you will get data as descending order. Now what should be the relevant syntax for this? This is the syntax. Okay, so see, these three lines are common: select part, from part, and where part. The new line is order by. In the order by, you are applying those columns over which you need to apply the order by clause. So you can select one column, you can select multiple columns, and similarly you can have these two keywords. ASC stands for ascending order, DESC stands for descending order. Okay, now if nothing will be written, अभी यहाँ पर जो next वाला syntax है, in this syntax we have not written any keyword. In this syntax we have not written any keyword. That means in this perspective, when this syntax is going to be executed for a relevant query, the data will always be in the form of ascending order. Data will always be in the form of ascending order. Or if you want data in the descending order, then this DESC keyword will be utilized. So this is the way we are going to do order by clause. I hope the definition and the explanation of order by is clear to everyone, because we are just putting our data in descending order or ascending orders. That's why we are using this order by clause. Shall we move to the next part? Any questions? Order by, for any questions regarding order by? कुछ समझ में ना आया, you want to ask what is ASC, what is DSC, कुछ भी issue? I won't reply. रिप्लाई करो आप लोग, कुछ तो रिप्लाई करो, समझ में आया नहीं आया, क्या है, ऑर्डर बाय क्यों करते हैं? क्लियर सर? सुप्रिया, only Supriya. What about others? Clear? Priyanshi, thank you so much. Others, no doubts. Clear, sir. Yes, move ahead, sir, please. Okay. So let's solve this question now. So now it's your turn. If you are saying it's clear, then apply that clarity of your mind to this particular question, and we want answers from you. Let's start then. So the first answer is from Daksh Trivedi. The answer is B. Okay. What about others? Last 10 seconds left. Siraj Ansari, option A. What about others? C. Now maximum of them are typing answer C. Okay. Yeah. Now all of them are typing, except these two students. All are typing answer C. Okay. Anyways, let's see the answer. Yes, those who have written answer C, you are absolutely correct. Yes, the correct answer for this question is C. Okay, and those two students who have opted for A and B, let's see the explanation. Okay, so up to here the query remains the same as the previous question. So हम क्या करेंगे, हम 4 tuples select कर लेंगे. How many? 4 tuples. One is MCA, this one, this one, this one, and this one. I hope इन सब का explanation तो सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये 4 tuples क्यों select किए, because of this part. Department name is equal to IT or department name is equal to MCA. Marks should be 42 and 50, and name not like A. Okay, now the next is order by.
द नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय। अब यहाँ देखो, वी हैव नॉट रिटन एनी कीवर्ड, हमने कीवर्ड तो कोई लिखा नहीं है, वी हैव नॉट रिटन डिसेंडिंग, वी हैव नॉट रिटन असेंडिंग। सो व्हाट इज दैट मींस, दैट योर डेटा इज गोइंग टू बी ऑर्डर्ड इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। जो कंपाइलर या जो आपका एसक्यूएल इंटरप्रेटर होगा वो आपको कैसा रिजल्ट रिटर्न करेगा, रिजल्ट विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे 4 टपल सिलेक्ट हो जाएंगे, MCA, IT, IT and MCA. Okay, now see, IT 42, IT 45. Okay, now what we are going to do, we are going to order by department names and marks. Okay, so मैंने क्या कहा था, ऑर्डर बाय एक कॉलम पे भी लग सकता है और मल्टीपल कॉलम पे भी लग सकता है, लेकिन हमने यहाँ कितने कॉलम्स मेंशन किए, वी हैव mentioned 2 columns. So जो order by होगा that will be on the basis of these 2 columns. So logically IT 42 and IT 45. So these are the 2 tuples, IT 42 and IT 45. Now let's come to MC and MCA, because पहले किस पे लगेगा, IT I followed by M, उसके बाद marks 42 and 45. Now MCA, MCA 42 and MCA 44. I hope the explanation of this question is clear to those students who have opted for option number A and B, and those who are not clear with the order by. The moment you write here descending, so the SQL interpreter change your result. It will be in the descending order form. Parul sir, shall we Any move to the doubts? next part? Any doubts, especially to those students who have given answer other than three? I just want the answers now from those students. उन्होंने जिन्होंने गलत आंसर दिया था, क्लियर है दक्ष, वेरी गुड दक्ष। और दूसरा स्टूडेंट जिसने आंसर मिस्टेक हो गया था जिससे आंसर से, हाँ सिराज, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेरी गुड सर, दोनों ने आंसर क्लियर कर दिया है सर। Okay, so let's go to the next part now. So the next is limit and offset clause. Okay, now again limit and offset clause. अभी हमने distinct पढ़ लिया. You all are clear with what is the role of distinct. Then we have also discussed the role of order by. Now we are saying limit and offset. ठीक है, अब हम इस क्या करते हैं, जो भी मुझे रिजल्ट मिलता है मेरी टेबल से, वट एवर रिजल्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई टेबल, लेट्स सपोज द नेम ऑफ द कॉलम इज A and I am getting 20 and 30. I am attaching one more here. Let's suppose I am attaching 40 here. I am attaching 40 here, or make it as more beautiful. Let's suppose this is my table. Okay, and here I'm having A, name of the column is A. I'm having 40, I'm having 20, and I'm having 30, and I'm attaching one more row, and let's suppose that row is 70. अब मुझे इसमें डिस्टिंक्ट लगाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑलरेडी मुझे पता है क्या है। ऑर्डर बाय मुझे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नो कि व्हाट इज ऑर्डर बाय, लेकिन मैं यहाँ लिमिट और ऑफसेट लगा रहा हूँ. सो सी, we are selecting column 1 and column 2, we are selecting from the table. Now that we have put the condition, we have also seen what is order by. Now limit and offset. Now this limit and offset are very simple. These are not very complicated terms. Limit और offset का मतलब ये है कि जो आपके पास रिजल्ट सेट आ रहा है, उस रिजल्ट सेट में से आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए. डिस्टिंक्ट में हमारे पास ये चॉइस नहीं होता कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए. डिस्टिंक्ट तो क्या करता है, जहां जहां पर भी उसको डिस्टिंक्ट पैटर्न मिल रहा है या जहां जहां पर भी डुप्लीकेसी, उन सब में से एक रो निकाल के लेके आएगा वो. अब लिमिट और ऑफसेट में मुझे ये करना है कि मुझे इस टेबल में से या तो 2 रो चाहिए होंगी, या 4 रो चाहिए होंगी, या 1 रो चाहिए होगी, या 0 रो चाहिए होगी. इन दैट पर्सपेक्टिव वी नीड टू वर्क अपॉन. ओके, सो व्हाट लिमिट सेट विल डू और ऑफसेट विल डू, सपोज इफ आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल ओवर दिस टेबल, द लिमिट सेट इज, offset is 2 and I am taking limit set is again 2. लिमिट सेट भी मैं 2 ले रहा हूं, ऑफसेट भी मैं 2 ले रहा हूं. तो जो ऑफसेट होता है, इट इज नथिंग बट इट इज टेलिंग मी दैट कितनी रो आपको छोड़नी है. ऑफसेट टेल्स मी कि ऊपर से आपको कितनी रो छोड़नी है. दैट मींस ऑफसेट जो होगा वो किस तरीके से काम करता है, इट इज समथिंग लाइक एन एरे. जैसे हम एरे का इंडेक्स डिफाइन करते हैं, कैसे, 0 to n-1. व्हाट इज द एक्चुअल साइज, 2. So 0 to 2 minus 1, that means 0 to 1. That means जो रो 0 इंडेक्स पे है उसको डिस्कार्ड कर दो, और जो रो 1 इंडेक्स पे है उसको भी डिस्कार्ड कर दो. दैट मींस ये 2 रो डिस्कार्ड हो जाएंगी. ऑफसेट हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा. तो जो भी आपने ऑफसेट दिया है, उतनी नंबर ऑफ रोज आपके कॉलम में से हट जाएंगी या टेबल में से हट जाएंगी. अब लिमिट क्या है, लिमिट 2. दैट मींस वी आर सेइंग वी नीड टू फैच ओनली 2 रोज. अब बची हुई जो 2 रो होंगी, दैट विल बी रिटर्न एज योर आंसर. सो अगर मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करूंगा लिमिट और ऑफसेट चलाने के बाद, सो द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस टेबल विल बी, वी आर गेटिंग A, वी आर गेटिंग 30 एंड वी आर गेटिंग 70. सिंपल. और अगर मैं यहां पर 1 लगा देता, इफ आई एम पुटिंग ऑफसेट एज 1, देन ओनली 30 will be selected. Okay, now let's suppose if I am putting here 3, if I am putting off limit as 3, लेकिन यहाँ पर अभी कितनी रोज बची हुई है, only 2 rows are there but limit is 3.
So in that case, it will not give you any error. Rather, it will return the same answer. उसको जितने भी डिफाइंड या जितनी भी गिवन नंबर में से टपल्स मिल जाएंगे लिमिट में, दैट विल बी रिटर्न टू यू. ओके, अगर आप 3 लगाओगे देन आंसर विल बी 2, मतलब 30 एंड 70. अगर आप 4 लिखोगे देन आल्सो आंसर विल बी 30 एंड 70. आई होप लिमिट एंड ऑफसेट आर क्लियर टू एवरीवन. Kindly reply. Over to you. Reply, please. Yes. Yes, yes, thank you. Reply any doubts in limit and offset. Clear, clear. Thank you, Shubham. What about others? I won't reply from all of you. 107. Clear. Yes. Any doubts? Limit or offset? May any doubt? Clear. ठीक है सर, वी कैन मूव फर्दर. हमें क्वेश्चन उनको शो करते हैं. चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन. if the things are clear, you said, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम, बट अब आके लिमिट और ऑफसेट लग गया है. तो आपने सारा सॉल्व किया हुआ है. Any response? Hello, I'm waiting for the responses. Sir D, the first response. Chavish, Ritik, D, all of them are typing D. Okay. Yeah. So What let's about see the others? Just wait then. I want others to reply. Others. I just waited because कि थोड़ा सा शायद इसमें टाइम लगेगा. उत्कर्ष, ठीक है, नंदिनी, प्रियांशी, त्यागी, प्रशांत, all of them are writing D, sir. Okay. Just please explain. Please show the So the answer. yes, final answer is D, and yes, you are absolutely correct. So let's see. Up to here, in the previous case, what we have seen the output here is this one. C. 108, 107, 106, 19. That means 42 IT, 45 IT, 42 MCA, 44 MCA. हमें ये रिजल्ट सेट मिला था लास्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, बस हमने लिमिट लगा दिया है 3 और ऑफसेट कर दिया है 2. दैट मींस 2 का मतलब ऑफसेट का क्या मतलब है, ऊपर से 2 रो छोड़ेगा ये. दैट मींस this row will be discarded and this row will also be discarded. What is the limit? Limit 3. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया, लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ लिमिट 3 है, रोज आपके पास 2 है, तो जितनी भी बची हुई रोज होंगी दैट विल बी रिटर्न. सो कितनी है यहाँ पर, John 42 MCA, John 44 MCA. So the final result will be D. So I hope limit and offset is clear to each and everyone. And now we are moving to the next part of this presentation, which is very, very, very important. I'm attaching very, very so many times. So that means the part which we are going to now explain is very, very important. And the name of the part is SQL with multiple tables. Okay. As of now, you have seen that whatever data we have seen or whatever query we are executing, it has only this kind of syntax. What I'm writing, select this table column name from a single table. तो यहां पर सिर्फ मैंने एक टेबल लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है now we have multiple tables. That means we are selecting number of columns, let's suppose S comma S1 from 2 tables, from P table and let's suppose from P1 table, or maybe from P3 table, or maybe from P4 table. That means our queries will be now having tables not in the quantity 1 but maybe in the quantity more than 1. So we have SQL now multiple table DQL. Okay, now the agenda of the topic is clear. So in this particular topic, data from multiple tables, we are going to discuss what is the role of multiple tables, how
we can join those tables. अगर मेरे पास एक से ज्यादा टेबल है, how we are going to join those tables on the basis of simple join and compound join. Then we will see aliasing, then we will see aggregate functions, we will see group aggregate functions, then we will see how to further filter the groups, and last we will sum up our presentation by seeing flow of execution of query. Okay, let's see one by one. So data from multiple tables, this is our first topic which we are going to discuss. Okay, अब जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस में जो डेटा हम लेके आते हैं, अभी क्या है कि डेटा बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, कहीं डेटा कुछ है, कहीं डेटा कुछ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है डेटा. वी नीड टू फैच मल्टीपल डेटा, वी नीड टू फैच इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा, बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट लिमिट अप टू वन टेबल. वहां क्या हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स, देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स. और डीबीएमएस की जब हम बात करते हैं तो ऐसा ही होता है कि एक टेबल नहीं होती हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेबल से हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को फैच करके लेके आना पड़ता है. ठीक है, इसका सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि जब हम डेटा को बनाते हैं, सर ने आपको ईआर डायग्राम का एक एक्सप्लेनेशन दिया होगा जब लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा ईआर डायग्राम. ठीक है, ईआर डायग्राम से हम क्या करते हैं, अपनी टेबल ड्राफ्ट करते हैं और क्राफ्ट करते हैं. तो अगर आपने कोई टेबल बनाया है तो ये हो सकता है चांसेस कि इस टेबल के अंदर बहुत सारी रिडंडेंसी हो, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है. रिडंडेंसी से आप लोग समझ सकते हो डुप्लीकेसी हो सकती है या किसी तरीके की एनामॉली हो सकती है. ठीक है, तो अब ये जो टेबल हमें हमारे पास बन के आ रही है, इसमें बहुत सारी रिडंडेंसी है. अगर रिडंडेंट डेटा है हमारे पास तो हमें डेटाबेस से जब डेटा फैच करना होगा या टेबल से डेटा फैच करना होगा, उस टाइम हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा हो सकता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्यूरेट ना हो. और अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो हमारे हिसाब से वो डेटाबेस बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है या अच्छा नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इस टेबल को जो हमें ईआर डायग्राम से मिली है, इस टेबल को हम मल्टीपल टेबल्स में तोड़ लेते हैं. इस टेबल को हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल्स में तोड़ लेते हैं. एक्चुअली आप लोग सीएस आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी हमें डेटाबेस से में टेबल कोई मिलती है वो एक सिंगल टेबल नहीं होती है. रीजन इसका यही है क्योंकि टेबल के अंदर बहुत सारी क्या होती है, रिडंडेंसी होती है. ठीक है, उस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए डेटाबेस के अंदर एक कंसेप्ट होता है और टॉपिक होता है, दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन. वो आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि हम मल्टीपल टेबल्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं हल्का सा बता देता हूँ. दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन का काम ही ये है कि जो आपके पास ईआरडी से टेबल आ रही है उस टेबल में से रिडंडेंसी को रिमूव करना. तो जब आप नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिडंडेंसी को रिमूव करते हो तो कोई भी टेबल मल्टीपल टेबल्स में ज्वाइन ब्रेक हो जाती है. मल्टीपल टेबल्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. अब देखो, जब टेबल मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक हो गई, अब जब हम मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक करने के बाद इंफॉर्मेशन फैच करेंगे तो मल्टीपल टेबल में ब्रेक होने से क्या होगा, हमारी जो रिडंडेंसी है वो तो रिमूव हो जाएगी एक हद तक, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी. कोई इंफॉर्मेशन किसी टेबल में चली जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन दूसरी टेबल में चली जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन तीसरी टेबल में चली जाएगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन को फैच करना पड़ेगा. अगर हमें मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन को फैच करना पड़ेगा तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा. तो जो मल्टीपल टेबल्स होंगी उनको ज्वाइन भी करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑफ दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट राइट नाउ वी आर हैविंग DQL और SQL ऑन मल्टीपल टेबल्स. यहां तक समझ में आ गया कि मल्टीपल टेबल्स को क्यों जरूरत पड़ती है एसक्यूएल क्वेरीज में. पारुल सर पूछिए जरा बच्चों से. एनी समझ में आ डाउट गया आप लोगों को? मल्टीपल टेबल या ज्वाइन के समय मल्टीपल टेबल का क्या मतलब है, कोई कंफ्यूजन है अभी तक, मतलब रीजन क्या है कि हम ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. आई क्लियर हो रहा है लॉजिक कि हम सिंगल टेबल से मल्टीपल टेबल्स की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है ऐसा, यस सर, क्लियर है. बताइए जल्दी से. बाकी लोग रिप्लाई करो, बाकी लोग, अभी 4 लोगों ने ठीक रिप्लाई है. किया. आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू. प्रियांशी, यस. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? समीर, ऋतिक, प्रियांशी, त्यागी, हर्षुल, आदित्य. ईआर डायग्राम क्वेश्चन मार्क है स्वतंत्र प्रताप सिंह का. ठीक है, स्वतंत्र. बाकी लोग? ठीक है, स्वतंत्र मेरे ख्याल से सर ना, अभिषेक सर अभी हाँ जी. स्वतंत्र स्वतंत्र वांटेड टू नो कि ईआर डायग्राम क्या है. इसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है. तो ओके, ओवर टू यू सर, आप. ओके. ईआर डायग्राम कुछ नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन है. जैसे आप एक तरीके से समझ लो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. आपके फादर ने आप जहाँ जिस भी सिटी से बिलोंग कर रहे हो, आपके फादर को नया मकान बनाना है, ठीक है, या उनको नया ऑफिस खोलना है. तो सबसे पहले वो किसके पास जाएंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे ना, कि भाई ये 200 एकड़ का लैंड है या 150 बीघे का लैंड है, इस पे मुझे अपना ही घर बनाना है, आप मुझे इस पे नक्शा बना के दे दो.
तो वो नक्शा बनेगा, उसके बाद ही तो आप घर बना पाओगे ना। तो ईआर डायग्राम भी उसी तरीके का काम कर रहा है कि जब आप एक एक कंपनी के अंदर एज ए डीबीए काम कर रहे हो, डेटाबेस डेवलपर, तो आपको क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट दी कि ये मेरा सिनेरियो है, इस पे मुझे क्या करना है, डेटाबेस बना के दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेआउट तैयार करना है। तो टेबल बनने से पहले और इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट ने आपको दी है उसके बीच में आपको एक रोड मैप तैयार करना है। तो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उस इंफॉर्मेशन को कैसे अरेंज करना है, उसको मैं ईआर डायग्राम बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? बहुत हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट स्वतंत्र बेसिक एजेंडा ईआर डायग्राम का यही है। स्वतंत्र, हाँ ओके सर, इसने रिप्लाई किया है। तो ओवरऑल बस छोटा सा आप ये समझ लो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम, जैसे आपने फ्लो चार्ट पढ़ा ना, फ्लो चार्ट में पिक्टोरियल हम्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो आपका एल्गोरिदम है, ठीक है, या प्रोग्राम है, उसी का इसी तरीके से टेबल टेबल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब हम यहाँ पे उसको टेबल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और जैसे सर ने बताया कि हमसे ज्वाइन करना है, एक से ज्यादा टेबल हैं, तो फिर हम कैसे काम करेंगे उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ईआर डायग्राम वाला पोर्शन पे अभी आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपको सीक्वल पढ़ना है, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नाउ सी दिस, सो अभी तक हम लोगों ने ये क्वेरी कंप्लीट की है, तो तभी दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग जनरल स्ट्रक्चर ऑफ query revisited. We have select clause, we have from, we have where, we have order by, we have limit. Okay, now अभी यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पर जो from वाला सेक्शन है उसमें सिर्फ एक टेबल मेंशन है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेंशनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो जो आपका जनरल स्ट्रक्चर है क्वेरी का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेरी इज गोइंग टू बी चेंज लिटिल बिट, एंड हाउ इज इट सो, दैट वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ज्वाइन। ओके, नाउ सी, ज्वाइनिंग तो सबको समझ में आ गई कि मैं ज्वाइन क्यों बोल रहा हूँ। ज्वाइन का कंसेप्ट इसलिए लेके आए हैं ताकि मल्टीपल टेबल्स हैं, पहले मल्टीपल टेबल्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमें सिंगल टेबल से ही निकाल के लेके आनी है। मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन के बाद फिर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को फैच करेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल ज्वाइन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल ज्वाइन में दो तीन चीजें हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, लेट्स सपोज मैं ऐसे लिखता हूं कुछ, सेलेक्ट एक एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, एंड आई एम राइटिंग फ्रॉम टेबल A1 कॉमा टेबल B1। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो ए टेबल है ये A1 का है और ये जो बी टेबल है B1 का है। अब इनको कैसे करना है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो सपोज ये क्वेरी है, तो अभी सिंटेक्स समझ में आ रहा है कि सिलेक्ट में दो कॉलम है और फ्रॉम में अब हमारा चेंज हो गया। फ्रॉम में हम एक टेबल की बजाय क्या कर रहे हैं, दो टेबल को यूज कर रहे हैं। तो जो क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो क्वेरी सबसे पहले क्या देखेगी, टेबल को देखेगी कि टेबल कितनी है। उसने देखा कि दो टेबल है, तो लेट्स सपोज यहाँ दो टेबल हम बना लेते हैं, एक ये टेबल है एंड लेट्स सपोज देयर इज अनदर टेबल, ठीक है, B1। ठीक है, दिस इज B1 टेबल एंड दिस इज A1 टेबल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब एसक्यूएल इंटरप्रेटर होगा, अभी जब क्वेरी मिलेगी, डीबीए ने क्या करा, या आपने एज इंडिविजुअल आपने क्वेरी पुट कर दी एसक्यूएल इंटरप्रेटर पे। अब एसक्यूएल इंटरप्रेटर ने देखा कि यहाँ पर तो भैया दो टेबल्स हैं, तो एसक्यूएल इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेगा बैकएंड पे। बैकएंड पे बहुत सारा काम चल रहा होगा ना, एसक्यूएल इंटरप्रेटर क्या करेगा, इन दोनों क्वेरीज को ज्वाइन करेगा। इन दोनों क्वेरीज को ज्वाइन करने के बाद एसक्यूएल क्या करेगा, इंटरप्रेटर एक वर्चुअल टेबल दे देगा। ये बात ध्यान रखना, रिजल्ट आने से पहले जो रिजल्ट सेट आपको मिलता है, रिजल्ट सेट आने से पहले एसक्यूएल इंटरप्रेटर के पास अपनी एक वर्चुअल टेबल होती है। वो हमें विजुअलाइज नहीं होती, लेकिन बैकएंड पे एक टेबल बनती है। किसी भी डॉक्यूमेंट में जब आप पढ़ते हो या किसी भी ऑनलाइन साइट पे आप जाके विजिट करोगे तो वहां ये कंसेप्ट नहीं बताते वर्चुअल टेबल का, क्योंकि यूजलेस है, बताने की जरूरत नहीं है, इसका अपना काम कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल इंटरप्रेटर क्या कर रहा है। तो ए और बी नाम की जो A1 B1 नाम की टेबल है, ये दो टेबल को मर्ज करने के साथ साथ क्या होगा, एसक्यूएल इंटरप्रेटर अपना काम कर देगा। एसक्यूएल इंटरप्रेटर इनको मर्ज करेगा और मर्ज करने के बाद एक वर्चुअल टेबल बना देगा, और इस वर्चुअल टेबल के ऊपर फिर क्या होता है, वेयर क्लॉज काम करता है। इस वर्चुअल टेबल के ऊपर क्या करता है, वर्चुअल टेबल के ऊपर कोई भी वेयर क्लॉज काम करता है। दैट मीन्स अगर यहाँ मैंने a ग्रेटर देन 40 है तो यहाँ पर सिर्फ वही टपल सेलेक्ट आएंगे वर्चुअल टेबल में, फिर ये वेयर क्लॉज लगेगा और उसके बाद a ग्रेटर देन 40 वाले टपल सेलेक्ट होकर आपकी रिजल्ट सेट आ जाएंगे। तो जो आपको रिजल्ट सेट मिलेगा वो छोटा मिलेगा, लेकिन बैकएंड पे वर्चुअल टेबल भी बनी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम सिंपल ज्वाइन पढ़ेंगे। तो अब सिंपल ज्वाइनिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि ज्वाइन कैसे करना है। अब चाहे वो दो टेबल हो, दो से ज्यादा टेबल हो, वो कितनी भी टेबल्स हो सकती हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो सिंपल ज्वाइन में ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी हम देखते हैं। अब इन ज्वाइंस में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस ज्वाइन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन ज्वाइन, फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल join. ठीक है, so these are the joins that we are going to discuss under this simple join, and I must say this thing,
very precisely that when you are going to sit for your Infi TQ exam, you will found ample amount of questions. I'm saying ample amount of questions over joins. Or maybe I can say this thing in such a new way that whenever you have any question in your SQL Infi TQ exam, all the questions will be from join. कोई शायद ही ऐसा कोई question होगा जिसमें join का concept ना होगा. तो joins are very very important. I hope the concept of simple join, or we can say how to join two tables, will be clear to each and every student. If you have any doubt, then get back to me. Otherwise, we will move to the next topic. Parul sir, over to you. any doubts yet? जॉइंस क्या है, कितने तरीके के जॉइंस हम आपको पढ़ेंगे. अभी आपको ये नहीं सोचना कि वो जॉइंस क्या होता है, अभी सिर्फ टाइप बताया सर ने. क्रॉस है, नेचुरल है, लेफ्ट आउटर जॉइन, ये सारे जॉइंस हम पढ़ेंगे. तो अभी तक का कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना है कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं टेबल को? वर्चुअल डाउट टेबल्स उज्जवल के अलावा किसी और ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक? कोई डाउट है तो बताओ. सर एम आई ऑडिबल? या यस, यू आर ऑडिबल. आदित्य और Shivam, no, sir. Don't hesitate, because to be very honest about this particular topic, that is when we are studying DQL with multiple table, in that case, these concepts should be very clear. If and only if अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. इसलिए डू नॉट हेजिटेट व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स. अपने क्वेश्चंस पूछो. सपोज अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है वो उस क्वेश्चन से दूसरे की हेल्प हो जाए ना. तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के क्वेश्चन पूछना है, बट अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ये कंफ्यूजन है, देन प्लीज आस्क द क्वेश्चन. तो आई think sir, nobody is asking a question, and a few of them have said no doubt, so we can move ahead, sir. Okay. So let's start the simple join. So as I discussed, the join clause creates a virtual table. Okay, by combining two tables from which data can be picked, and the rule to combine the two tables is specified through on clause. ठीक है. अब यहाँ पर on clause एक नई चीज आ गई, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए. On clause is nothing but is equivalent to where. जो काम where करता है वही on करता है. वेयर में आप कंस्टेंट लगाते हो, ऑन के अंदर भी आप कंस्टेंट पुट करते हो. बस अगर मैं कंफ्यूजन को अवॉइड कर दूं कि ऑन और वेयर कौन सा कहां पर यूज होगा, तो हमेशा ये याद रखो कि जब भी हम ज्वाइंस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर सेइंग ज्वाइंस, ज्वाइंस के साथ हमेशा ऑन यूज होगा. अगर आप नॉर्मल क्वेरी लिख रहे हो, जैसे आप पिछली स्लाइड्स में लिखते आ रहे हो, वहां पर आप वेयर यूज करो. ठीक है. तो जो जिसने भी एसक्यूएल डिजाइन किया है, जिस कंपनी ने भी, दे आर सेइंग that we have joins especially for on, and we have where for normal queries. I hope agenda is clear कि what is the meaning of on and what is the meaning of where. ठीक है. तो on clause जहां पर भी आप देख रहे हो, then only you can go with, there you can go with joins. Okay. Now अभी हमें क्या करना है, we have two tables, p table and q table. जितने भी ज्वाइंस हम पढ़ेंगे या जितने भी ज्वाइंस मैंने आपको बताया है पिछली स्लाइड में, उन सारे के सारे ज्वाइंस को हम इन दो टेबल पे लगा के देखते हैं. ठीक है. आपको क्लियर हो जाएगा वर्चुअल टेबल कैसे बन रही है, ज्वाइन कैसे काम कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक ज्वाइन हम पढ़ रहे हैं जैसे क्रॉस ज्वाइन. तो क्रॉस ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप विद द हेल्प ऑफ दीज टू tables. Okay, let's see one by one. Now, first of all, we are going to have cross join. Okay, let's see what is cross join. So mathematics में आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्रॉस ज्वाइन पढ़ा होगा, या सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा. तो क्रॉस ज्वाइन इज नथिंग बट इट इज सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स. अगर मैं दो टेबल की बात कर रहा हूं तो इट इज ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स. ठीक है. बाकी की सारी तो इस क्वेरी में चीजें सेम है जो हमने पुरानी पढ़ी है. जो ब्लैक या बोल्ड से है, दैट इज द न्यू पार्ट. ओके. फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2, दिस इज द न्यू लाइन विच वी आर राइटिंग. अब यहां पर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या चेंज हुआ है. यहां पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन टेबल, वी हैव टू टेबल्स, टेबल 1 table 2. That means we are putting cross join between two tables, table 1 and table 2. Now where condition followed by order by and limit, everything remains the same. Only the new thing in this query is that instead of using single table, we have two tables, and both these tables are joined with the help of a join, and that join is known as cross join. ठीक है. Cross join is nothing but it is simple multiplication of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स. जैसे कि मैंने दो टेबल्स का नाम लिया है P और Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद
जो मुझे टेबल मिलेगी दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ज्वाइन, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ज्वाइन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रॉस ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर ऑन क्लॉज, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इट इज मैंडेटरी फॉर क्रॉस ज्वाइन टू राइट ऑन क्लॉज, नो, यू कैन यूज इट और यू डज नॉट रिक्वायर इट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, क्रॉस ज्वाइन जहां पर भी आपको दिखता है दैट इज सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। अगर एक इसमें यहां पर एक मैं नोट कर देता हूं, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी हम क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन क्लॉज यूज करते हैं, इफ आई एम यूजिंग cross join along with on clause, that join is known as inner join, ठीक है, that join is known as inner join. That means agar somebody asks you a question, if somebody asks you a question कि what is the difference between cross join and inner join, then your answer must be there is no difference between cross and inner join. Cross join and inner join both are doing Cartesian product, but in the case of cross join there is no on clause, but in the case of inner join there is a on clause. That means दोनों कर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रहे हैं, इनर जॉइन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है और क्रॉस जॉइन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है, लेकिन क्रॉस जॉइन के बाद जो टेबल आएगी उसमें सारे के सारे टपल्स होंगे। क्रॉस जॉइन में जो वर्चुअल टेबल बनेगी उसमें सारे के सारे टपल्स होंगे, लेकिन जो इनर जॉइन वाली वर्चुअल टेबल बनेगी उसमें वही टपल्स होंगे जिनके ऊपर कंडीशन लगी होगी, क्योंकि इनर जॉइन के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, ऑन क्लॉज को अटैच करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, जल्दी से बताइए मुझे। एनी डाउट? से यस कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? क्रॉस जॉइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। किसी से पूछते हैं सर, ऋतिक कौशिक। हाँ ऋतिक माइक ऑन करो बेटे। यस सर। हाँ, ये बताओ क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन में सर ने क्या डिफरेंस बताया? सर क्रॉस जॉइन तो एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, एंड इनर ठीक है। जॉइन सर सिर्फ जो हम वो देते हैं, कॉलम्स देते हैं सर, उनके बीच में होता है सर। क्रॉस जॉइन तो ठीक बताया, लेकिन इनर जॉइन में आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं ऋतिक। हाँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इनर जॉइन में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा, इनर जॉइन इज आल्सो हैविंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनर जॉइन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और चीज करोगे, इनर जॉइन हो या क्रॉस जॉइन, दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो रहा है। सिर्फ क्रॉस जॉइन की जो वर्चुअल टेबल बनेगी उसमें सारे टपल्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले, लेकिन इनर जॉइन में सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के वही टपल्स होंगे जिन जिन पे कंडीशन ऑन वाली सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज बोथ आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, अभी समझ आ गया ऋतिक? आई एम आस्किंग टू यू। यस सर। Okay, let's move to the yeah. Hello. हेलो। Hello. Any doubt? एनी डाउट? किसी ने माइक ऑन किया था मेरे ख्याल से अभी। एनी डाउट? आपको माइक ऑन नहीं करना जब तक हम आपको परमिशन नहीं देंगे। कोई डाउट है तो आप मैसेज करिए। सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है the virtual table created by the cross join is the Cartesian product of each row of both the tables. This join copies all columns from both the tables. This join copies all columns from both the tables. ठीक है, let's see one by one. अब हमारे पास यहाँ एक सिंपल सा क्वेरी है जहां पर है सेलेक्ट स्टार। आई होप स्टार का मतलब आपको पता होगा। स्टार का मतलब होता है कि पी और क्यू के दोनों टेबल से सारे के सारे टपल एक ही बार में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पी क्रॉस ज्वाइन क्यू। अब हम कर रहे हैं पी क्रॉस ज्वाइन क्यू। दैट मीन्स हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक पी नाम का टेबल है और एक क्यू नाम का टेबल है, और इन दोनों के बीच में मुझे जो ज्वाइन करना है या इन दोनों टेबल्स को जब ज्वाइन करना है वो मैं किस टेक्निक से कर रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज लिखी हुई है डॉट, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या मतलब होता है डॉट का? देखिए, जब आप मर्जिंग कर रहे होते हैं मल्टीपल टेबल्स की, ठीक है, सिंगल टेबल तो है नहीं हमारे पास, कितनी सारी टेबल्स हैं? बहुत सारी टेबल्स हैं। यहीं तो यहाँ तो दो टेबल्स हैं, लेकिन हो सकता है मेरे पास 10 टेबल हो, मेरे पास 50 टेबल हो, मेरे पास 20 टेबल हो, कितनी भी टेबल्स हो सकती हैं। उस टाइम क्या होता है, बहुत सारी टेबल्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे कॉलम सेम नाम के होते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पर एक सिंपल एग्जांपल है, पी और क्यू दो टेबल हैं, इनमें पी वाली टेबल में भी डी नाम का कॉलम है और क्यू वाली टेबल में भी डी नाम का कॉलम है। ठीक है, तो जो पी नाम की टेबल जब मर्ज होगी क्यू नाम की टेबल के साथ, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जो डी कॉलम है किस किस टेबल से आया है।
हमें तो पता करना पड़ेगा। मैनुअली तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ ये डी वाला है, ये पी वाला है और ये क्यू वाला है, लेकिन कंपाइलर को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई ये डी कौन सी टेबल से है। तो उस टाइम कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट के साथ टेबल का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। सिर्फ डॉट का यही रेलेवेंस है। डॉट का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ और हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कॉलम है और जो टेबल है, तो यहाँ पर अगर मैं पी डॉट बी लिख रहा हूं तो कंपाइलर को पता चल जाएगा, इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि जो बी नाम का टेबल है ये पी टेबल से उठ के आया है। ये ई नाम का जो कॉलम है ये कौन सी टेबल से आया है, क्यू नाम की टेबल से आया है। ये जो सी नाम का कॉलम है ये कौन सी टेबल से आया है, पी नाम की टेबल से आया है। या जो एफ नाम का कॉलम है ये क्यू नाम की टेबल से आया है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग dot here. When we have multiple tables and on those multiple tables we have common column with similar name, so to avoid confusion we simply put dot with the help of table name so that multiple tables with same column name can be easily identified. यहां तक समझ आ गया? जल्दी से लिखो yes or no so that I can proceed with the next part. रिप्लाई भाई, रिप्लाई करो। यहां तक समझ में आया डॉट का क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं? यस। देखो yes. आप लोग नेट से पढ़ोगे, आप लोग बुक से पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आप यूज करोगे एमसीक्यू एग्जाम से पहले, लेकिन जितना क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ दे रहे हैं आपको, जिस प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको ऐसा थ्रू आउट नेट ना मिले। तो बेस्ट ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप यहाँ से अपने सारे डाउट क्लियर कर लो और उसके बाद फिर नेट पे पढ़ना, क्योंकि नेट पे इतना कंफ्यूजन होगा कि बहुत दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, चलो। ऐसा नेट पे अवेलेबल ही नहीं है सर। हाँ, होगा भी ऐसा नहीं, नेट सही पे बात अवेलेबल, है। क्योंकि एक बार में इतने सारे जो हम लोग कंटेंट हमने डिजाइन किए हैं हम लोग ने, और जो भी चीज हम आपको दे रहे हैं आप ट्रस्ट कर लो, आप कभी भी मैच करा लेना कहीं पे भी नेट पे। तो एक बार में जो कंसोलिडेटेड डेटा और वो डिग आउट जो इन्फॉर्मेशन आज के लास्ट या सर के नेक्स्ट लेक्चर पे जो लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी उसको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है वो सारी। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉम में आ गए। फ्रॉम में क्या है, एक पी नाम का टेबल है, क्यू नाम का टेबल, और दोनों के बीच में क्रॉस ज्वाइन हो रहा है। और क्रॉस ज्वाइन अब आप समझ चुके हो। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, सिंपली दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देख लो सारे लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि जब पी नाम की टेबल का पहला रो उसकी मल्टीप्लीकेशन क्यू नाम के हर एक रो के साथ, ठीक है। सेकंड, पी नाम का सेकंड रो उसकी मल्टीप्लीकेशन क्यू नाम के हर रो के साथ, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट कॉलम और उसकी मल्टीप्लीकेशन क्यू नाम के हर रो के साथ, ठीक है। लेट्स सी द वर्चुअल टेबल। सी, पी और क्यू, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले वर्चुअल टेबल बनती है। जो वेयर वाला क्लॉज है वो बाद में चलेगा, सबसे पहले वर्चुअल टेबल बनाएगा। तो वर्चुअल टेबल कैसे बनेगी, ये देखो, 11 20 80 31, जो पहला वाला जिसको मैंने पिंक से दिखाया, इसकी मल्टीप्लीकेशन क्यू के हर रो के साथ, 12 13 23 11 12 80 31 31 16 14 11 12 80 31 15 12 19, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 41 41 23 92 15 12 13 23, दैट मीन सेकंड वाले टपल की मल्टीप्लीकेशन क्यू के हर टपल के साथ, जिसको मैंने ब्लू से दिखाया था। 41 23 92 15 31 16 14, सिमिलरली 41 23 92 15 15 12 19, एंड सिमिलरली फॉर दीज थ्री टपल्स। ये हो गई वर्चुअल टेबल, ठीक है। तो जब अगर आपको अब क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे ये मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी हुई है, तो अब आपको मैथमेटिक्स भी पता है कि कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले देखो कौन सा ज्वाइन है। अगर एक सिंगल टेबल है तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास कोई भी ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन हो या सब्सिक्वेंट ज्वाइन जो अभी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेगा, दोनों टेबल या मल्टीपल टेबल्स को मिला के एक वर्चुअल टेबल बनेगी। वर्चुअल टेबल कैसे बनानी है, अगर आपको क्रॉस ज्वाइन दे रखा है तो क्रॉस ज्वाइन के मुताबिक बनेगी, आपको नेचुरल ज्वाइन दे रखा है तो नेचुरल ज्वाइन के मुताबिक बनेगी। अभी आपको क्रॉस ज्वाइन क्लियर हो गया कि क्रॉस ज्वाइन क्या है, कि सर ने बताया क्रॉस ज्वाइन सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दोनों टेबल्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको यहां बता दिया। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ये वर्चुअल टेबल आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है कि P डॉट बी इक्वल टू Q डॉट ई, के वही टपल सेलेक्ट हो फाइनल रिजल्ट सेट में जहां जहां पर ये तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। वो क्या कंडीशन है कि जो B कॉलम होगा P टेबल का और जो E कॉलम होगा Q टेबल का, उनकी वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, या एंड C कॉलम
जो पी सी कॉलम पी टेबल का उसकी वैल्यू 67 होनी चाहिए एंड क्यू डॉट एफ मस्ट बी लेस देन 20, तभी जाके हमें रिजल्ट सेट मिलेगा। ठीक है, तो हम इस पे अप्लाई करते हैं। पहला क्या है, पी डॉट बी, पी डॉट बी ये वाला पोर्शन हो गया और क्यू डॉट ई ये वाला पोर्शन हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, ये सेलेक्ट नहीं होगा। बाद में चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एंड है, और आपको लॉजिक गेट सर ने बता दिए थे लास्ट क्लास में। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, ये भी नहीं उठेगा। ठीक है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि पी डॉट सी इक्वल टू 67, क्या यहाँ 67 है? नहीं है, so this is also not going to be selected. Similarly 13, similarly 23, not in the case, 23, 16, not in the case, 23, 12, not equal, 16, 13, not equal, 16, 16, यहां पर पहली कंडीशन मैच हो गई, then P dot 6 must be 67, this condition is also matched, and Q dot F must be less than 20. That means it must also be less than 20. क्या ये 20 से less है? Yes, it is also less than 20. That means this tuple which is 12, 16, 67, 29, 31, 16, 14 will come in my result set. Let's see one more. 16 and 12. No, not equality. Simply regarded. So the final result set that you will get after executing this particular query will be this one. And it must have only one tuple, 12, 16, 67, 29, 31, 16 and 41. I hope the entire cross join is clear to each and every student present in this class. This is the best explanation that I can give, and you can fetch from anywhere. Parul sir, over to you. Ujjwal wanted to repeat the things. Except Ujjwal, Okay. no one except Cartesian. Ujjwal, what do you want actually? Repeat. अच्छा ठीक है सर, एक बार फिर से इसको बता दीजिए। और बाकी व्हाट अबाउट अदर्स सर, एक बार यहाँ भी रुकते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स एक्सेप्ट उज्जवल, व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर हो गया आपको? कार्टेशियन जो सर ने बताया आपको, क्रॉस ज्वाइन क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर क्लियर। ऑन भी यूज कर सकते थे क्या वेयर की जगह? सर ऑन भी यूज कर सकते थे वेयर की जगह। ओके अच्छा, बाकी और कोई क्वेश्चन अर्चित ने पूछा? प्रियांशु क्लियर सर, क्लियर है। और वही दो क्वेश्चन, एक तो उज्जवल का है, एक बार रिपीट दे, और दूसरा क्वेश्चन अर्चित का, क्या ऑन यूज कर सकते हैं वेयर की जगह? ठीक है ठीक है ठीक है, करें इसको एक्सप्लेन दोबारा से? यस सर, यस ठीक सर। है, देख लीजिए जिसके को भी डाउट्स प्लीज क्लियर कर लीजिए। देखो सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, हर एक टपल को जिन भी दो टेबल्स के बीच में लगा रहे हैं उनकी हर एक टपल दूसरे टपल से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर 11, 80, 31 की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 12, 13, 23 से, फिर 11, 12, 80, 31 का मल्टीप्लिकेशन होगा 31, 16, 14 से, और उसके बाद 11, 12, 80, 31 का मल्टीप्लिकेशन होगा 15, 12, 19 से। ठीक है, इस वे में हम फॉलो कर रहे हैं। तो यही पहला हैगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है इस वाले टपल के लिए, और यही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है 12, 16, 67 के लिए। तो टोटल कितनी रोज है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, टोटल 1, 2, 3 रोज हैं, और यहाँ पर भी 3 रोज हैं। तो कितनी वन आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सिंपल 9 रोज आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझ आ गया? अब बताइए, दूसरा क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या वेयर के साथ में ऑन भी यूज कर सकता हूं? हाँ जी, मैं यूज कर सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं ऑन पी डॉट बी इज इक्वल टू क्यू डॉट ई, ठीक है, तो उस केस में ये पूरा का पूरा सिनेरियो बन जाएगा इनर ज्वाइन। पूरा का पूरा सिनेरियो बन जाएगा इनर ज्वाइन। मैंने क्या बोला था? जब तक आप ऑन क्लॉज यूज नहीं कर रहे हो, जब तक आप ऑन क्लॉज यूज नहीं कर रहे हो, तब तक वो क्या करेगा? जो वर्चुअल टेबल बनेगी दैट सिंपली विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टेबल्स। लेकिन अगर आपने क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन यूज कर लिया, तब भी वो क्या करेगा? सबसे पहले दोनों टेबल्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, लेकिन जो वर्चुअल टेबल आएगी वो वर्चुअल टेबल ऑन के बाद आएगी। यहां पर हम वेयर यूज कर रहे थे फाइनल रिजल्ट सेट में, फाइनल रिजल्ट सेट में यहां पर जो ऑन यूज होगा वो रिजल्ट सेट से पहले यूज होगा। दैट मींस जो वर्चुअल टेबल होगी, अब वो वर्चुअल टेबल ये नहीं बनेगी, वो वर्चुअल टेबल बनेगी वो वाली जहां जहां पर ये कंडीशन मैट हो रही होगी। उसके बाद फिर यहां पर क्या होगा? वेयर यूज होगा, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट सेट। समझ आ गया क्रॉस ज्वाइन और इनर ज्वाइन में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बता दो। अभी समझ में आ गया? उज्जवल और अर्चित, स्पेशली आप दोनों ने क्वेश्चन पूछे थे, अपार्ट फ्रॉम उज्जवल। यस, मिलन, यस सर,
ठीक है, ये मैं थैंक यू बोलूंगा उज्जवल और इनका कि इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इनर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। देखो गलती मत कर देना, वर्चुअल टेबल दोनों ज्वाइंस के केस में डिफरेंट होगी। क्रॉस ज्वाइन के केस में आंख मूंद के आप ये देख लेना कि जितने भी टपल्स हैं, जैसे यहाँ 3x3 की टेबल है तो 9 ही टोटल आएंगे। लेकिन अगर आप इनर ज्वाइन लगा रहे हो, दैट मींस क्रॉस ज्वाइन प्लस ऑन क्लॉज लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 9 आए, तब आएंगे उस कंडीशन में जहां जहां पर भी ऑन क्लॉज सेटिस्फाइड कर रहा होगा। दिस इज द वे वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन क्रॉस ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन। आई होप एक फाइनल नोट ले लेते हैं सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। any confusion still, any confusions yet, any confusions? अभी भी कोई confusion है तो please let us know, will proceed accordingly. No sir. ओके और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, जब भी वर्चुअल टेबल बनेगी तो जितने भी कॉमन कॉलम्स होंगी सबकी सेपरेट सेपरेट बनेगी। डुप्लीकेसी अलाउड है यहाँ पर, तो मैं इसलिए पहली बार वेरीफाई कर देता हूँ। डुप्लीकेसी इज अलाउड हियर। देखो यहाँ पर डी नाम की 2 कॉलम्स है, 1D बिलोंग्स टू P एंड 1D बिलोंग्स टू Q। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट इज माय कार्टेशियन ज्वाइन। ठीक है, अब सिंपल है कार्टेशियन ज्वाइन। देखो, इफ वी रिप्लेस द क्रॉस ज्वाइन, ध्यान से सुनना सारे लोग, if we replace the cross join with a simple comma, it becomes a Cartesian join. That means अगर आप यहां पर क्रॉस ज्वाइन की जगह कॉमा लगाते हो, अगर आप यहां पर क्रॉस ज्वाइन की जगह क्या लगाते हो, कॉमा लगाते हो, तब भी वो क्या करेगा, क्रॉस ज्वाइन ही करके देगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना खुद को, क्रॉस ज्वाइन बोल दो या कार्टेशियन ज्वाइन बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। क्रॉस ज्वाइन के लिए हम क्रॉस ज्वाइन लिख के दे रहे हैं, कार्टेशियन ज्वाइन के लिए हम कॉमा लगा रहे हैं, लेकिन आंसर दोनों केस में सेम रहेगा। आंसर दोनों केस में सेम रहेगा। कॉमा लगा के भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कर रहे हो, क्रॉस ज्वाइन लगा के भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कर रहे हो। दैट मींस क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन ज्वाइन बोथ आर रिप्लेसेबल। आई होप लॉजिक इज क्लियर। से यस तो नो पारुल सर? Logic is clear now. Any doubts? Yes, yes sir, clear. Okay, so इसका मैं explanation नहीं दिखा रहा हूँ because the previous explanation that we have seen for cross join is equivalent to Cartesian join. So let's come to the next join, which is known as my natural join. Okay, now natural join is little bit different what we are expecting from cross join. So yes, make a difference के what is the difference between natural join and cross join or inner join. Okay, let's come to this one. So following is the general syntax. हम natural join के लिए कौन सा keyword use कर रहे हैं? We are using natural join. We are using natural join. हम किस पे लगा रहे हैं? 2 टेबल्स के बीच में, from table 1 table 2, but this time we are putting natural join. अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्रॉस ज्वाइन पढ़ा, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन के साथ हमने क्या पढ़ा? ऑन क्लॉज पढ़ा, जिसको मैं बोल रहा हूं इनर। फिर हमने क्या पढ़ा? कार्टेशियन, हमने पढ़ा कार्टेशियन ज्वाइन विच इज इक्विवेलेंट टू क्रॉस ज्वाइन। इनर ज्वाइन नहीं बोल रहा हूं, कार्टेशियन ज्वाइन को बोल रहा हूं मैं क्रॉस ज्वाइन। अगर कार्टेशियन कॉमा लगा के भी आप ऑन क्लॉज लिख दोगे, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? इनर ज्वाइन की, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। अब जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो नेचुरल सी चीज है कि जब ज्वाइन करेंगे तो बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बनेगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा कैसे, वो एक बार देख लेते हैं। देखो, नेचुरल ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर ऑन क्लॉज। आपको ऑन क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पुट ऑन क्लॉज विद नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ज्वाइन लुक्स फॉर अ कॉमन कॉलम टू अप्लाई, ठीक है। दैट मींस जब भी आप 2 टेबल्स के बीच में नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, whenever you are going to apply natural join between both the tables, the mandatory condition is that both the tables will have a common column to apply. दोनों टेबल्स के बीच में जब तक कॉमन कॉलम नहीं होगा तब तक नेचुरल ज्वाइन अप्लाई नहीं होगा। Am I clear on this? Now virtual table is created by selecting only those tuples from table 1 and table 2 for which the value of the common column is equal. So this is the next condition. पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों टेबल्स तभी मर्ज हो पाएंगी जब दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉमन कॉलम होगा। फिर
जब मर्जिंग हो रही होगी तो मर्जिंग भी एक कॉमन वैल्यू पे हो रही होगी. दैट मींस जो सेल वैल्यू होगी, दैट इज आई एम सेइंग virtual table is created by selecting only those tuples from table 1 and table 2 for which the value of the common column is equal. And if a column is not found, if a common column is not found, this join behaves exactly like cross join. Okay, this join behaves exactly like both the tables but keeps a single copy. क्रॉस ज्वाइन में हमने क्या देखा था, मल्टीपल टेबल्स में अगर सेम नाम का कॉलम है तो जितने भी टेबल से क्रॉस ज्वाइन हो रहा है सबके रेस्पेक्ट में एक एक कॉलम बनेगा. दैट मींस अगर पिछली वाली टेबल में हमने दो डी देखे थे, डी नाम की दो कॉलम थे ना, दोनों के दोनों वर्चुअल टेबल के अंदर आ रहे थे. लेकिन नेचुरल ज्वाइन जब होता है तो नेचुरल ज्वाइन में डुप्लीकेसी नहीं होती है. देयर इज नो डुप्लीकेसी इन नेचुरल ज्वाइन. नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, जितने भी मल्टीपल कॉलम्स होंगे सबकी सिंगल कॉपी ही वर्चुअल टेबल के अंदर वो क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन, इनर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन. क्रॉस ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन में भी एक डिफरेंस है. क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. इनर ज्वाइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस कंडीशन. नेचुरल ज्वाइन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है बट द कंडीशन इज दैट column must be same, column name must be same, and their cell value will also be common. Side by side, there will not be any duplicacy, whereas in my cross and inner there is duplicacy. Okay, let's come to the part now. अब देखो पारुल सर, एक्सप्लेनेशन समझ आ गया सबको? पूछ लो जल्दी से, कोई वरना मैं डाउट एक्सप्लेन है? करूं नेचुरल एग्जांपल्स जॉइन में और जो अच्छा सर समझ ने में आ जाए. बताया कॉमन कॉलम होना चाहिए या डुप्लीकेसी आएगी नहीं आएगी, इसमें कहीं कोई डाउट हो रहा है? अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. रिप्लाई करो. बढ़े आगे. आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई. क्लियर है सर? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स सी नाउ. अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पी नेचुरल ज्वाइंट क्यू. तो यहाँ पर दो टेबल्स हैं, एक पी नाम का टेबल है, एक क्यू नाम का टेबल है. अब देखो नेचुरल ज्वाइन जब लगेगा तो इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा, इंटरप्रेटर सबसे पहले देखेगा कि क्या दोनों के बीच में कॉमन कॉलम है कि नहीं है. अगर कॉमन कॉलम है तब तो वो क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन को फोर्स करेगा. सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया एस, यहाँ डी नहीं है, यहाँ एस है. अब मैं लिख रहा हूँ पी नेचुरल ज्वाइन क्यू. पी नेचुरल ज्वाइन क्यू, पी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ए बी सी एस, और क्यू के अंदर है डी ई एफ. लिख तो आप नेचुरल ज्वाइन रहे हो लेकिन कॉमन कॉलम तो कोई नहीं मिल रहा, तो ये नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस ज्वाइन में. ये मत समझना कि नेचुरल ज्वाइन लगा दिया और कॉमन कॉलम नहीं तो एरर मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है. नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रॉस ज्वाइन में. क्योंकि भैया क्रॉस प्रोडक्ट तो हर कोई कर रहा है, हर ज्वाइन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, हर ज्वाइन अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन किसी कंडीशन पे. समझ आया ये एक्सप्लेनेशन? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. नेचुरल ज्वाइन आया, आपने देखा रेस में तो कोई कॉलम कॉलम है ही नहीं, चलो भैया इसमें एरर पुट कर देते हैं क्योंकि कॉमन कॉलम नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर नेचुरल ज्वाइन दे रखा है और कॉमन कॉलम नहीं है तो ऑटोमेटिकली नेचुरल ज्वाइन बिहेव करने लगेगा क्रॉस ज्वाइन की तरह. और आपको पता है क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, दोनों टेबल्स का क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है. अगर अगर कॉमन कॉलम है, अगर कॉमन कॉलम है तब वो नेचुरल ज्वाइन लगाने की कोशिश करेगा. लेकिन कब करेगा, जब उन कॉलम्स में सेल वैल्यू भी कॉमन होगी. अगर सेल वैल्यू भी कॉमन नहीं है तब भी नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा, क्रॉस ज्वाइन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा. समझ आ रही है मेरी बात? तब भी नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा, क्रॉस ज्वाइन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा. तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन का कॉलम का नाम भी सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए. ठीक है, मैं इसका वर्चुअल टेबल बना के दिखाता हूं आपको. 11 12 80 31, इसकी मैचिंग किससे होगी, 12 के साथ हो सकती है, नहीं हो सकती है. 31 के कॉरस्पॉन्डिंग 31 अवेलेबल है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि नहीं है, क्योंकि 31 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सेल वैल्यू 31 कॉमन नहीं मिल रही है. 31 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 31 कॉमन मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है. तो 31 16 एंड 14. अभी ये वर्चुअल टेबल गलत है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों. अब अभी ऐड नहीं होगा. 41 23 92 15, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ नहीं हो पाएगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन के साथ नहीं हो पाएगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन के साथ हो सकती है. 15 12 19. ठीक है. अब 12 16 16 और 29 इसके साथ हो सकता है, नहीं हो सकता. 9 67 will not be fruitful. So जो फाइनल ट्रूथ टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, सी दिस. तो कुछ आएगा ही नहीं.
डज नॉट सब बोला था जितनी भी डुप्लीकेसी वाले कॉलम्स होंगे उन सबको क्या करेगा, सिंगल कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। तो कितनी कॉपी आनी चाहिए वर्चुअल टेबल के पास? 2 आनी चाहिए? नहीं, एक आएगी। 31 15 31 इनकी कॉमन कॉपी 31 एंड 15। सो दिस इज द एग्जैक्टली how my virtual table will be created for my natural join. So this is the final virtual table. After this we will get the solution as this one. That means P dot C must be greater than 80. Yes, it is greater than 80. No, it is not greater than 80. So we will not consider this one. If 92 is greater than 80, yes, it is. So in the final result set, only one row will be projected, which is this one. I hope natural join is clear. अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछ लो. I will explain it again because this is very very important. Parul sir, over to you. Any doubts? नेचुरल जॉइन में सर ने जो बताया अभी तक, उसमें कोई डाउट है आपको? रिपीट वर्चुअल टेबल, प्रियांशी प्रजापति. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम प्रियांशी, इसके अलावा अगेन उमंग ने भी कुछ बोला. सर एक बार फिर से हम बता देते हैं इसको. ठीक है ठीक है. देखिए बेटा, जिसने भी पूछा प्रियांशी और आप देख लीजिए ध्यान से. मैं क्या बताने की कोशिश कर, हाँ जी, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नेचुरल, हाँ मैं बता रहा हूं सर, नेचुरल ज्वाइन एप्लीकेबल होगा उसी केस में जब दो टेबल्स के बीच में कॉमन कॉलम होगा. और कहां कहां अप्लाई होगा? वहां अप्लाई होगा जहां जहां पर सेल वैल्यू कॉमन है. अगर कॉलम का नाम कॉमन है और सेल वैल्यू कॉमन नहीं है तो वो क्रॉस ज्वाइन कर देगा. कंडीशन दोनों ही है. देखो तभी मैंने स्लाइड में लिख के आपको बताया है. दिस ज्वाइन लुक्स फॉर अ कॉमन कॉलम टू अप्लाई ज्वाइन. वर्चुअल टेबल इज क्रिएटेड बाय सिलेक्टिंग ओनली दोस वैल्यू होगी ही नहीं तो वो क्रॉस ज्वाइन करेगा कैसे? आई मीन इनर नेचुरल ज्वाइन करेगा कैसे? तो दैट मीन वो क्या करेगा, सिंपल दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के आपको दे देगा. अब जो वर्चुअल टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी. वहां तो क्या हो रहा था कि हर एक क्रॉस ज्वाइन में क्या हो रहा था, हर एक रो के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए. यहाँ पर तो हमारे पास कंडीशन है, तो वो क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन के मुताबिक वो क्या करेगा, 31 वाला जो ये रो है 11 12 81 31, इसको सिर्फ उसी रो के साथ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा जहां पर इस सेल की वैल्यू कॉमन होगी. तो इस सेल की वैल्यू कहां कॉमन है? इस वाली सेल के पास. सो दैट इज व्हाई दिस विल बी रिपीट. अब होना क्या चाहिए, जब डी का मर्जर डी के साथ होगा या इस वाले ABCD के साथ मर्जर होगा 31 16 का, तो 31 31 दो बार आना चाहिए. लेकिन नेचुरल ज्वाइन में ये इनबिल्ट फीचर है कि वो क्या करेगा, वो इन दोनों को भी क्या करेगा, सिंगल कॉपी बना के देगा. तो दैट इज व्हाई 31 विल बी सिंगल हियर. देन 41 23 92 15 यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा. दैट इज व्हाई राइट एंड 41 23 92 दोनों का क्या होगा, कॉमन कॉलम will be represented 31 15 31 15. So we are writing here 31 15. So this is the way my natural join will work. I hope now it is clear. Say yes or no. जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, प्रियांशी एंड ऑल स्टूडेंट्स. आदित्य, उमंग, ठीक है, क्लियर, ठीक है सर. आगे बढ़े. हाँ सर. अटेंडेंस हो गया सर? बस अब ले रहा हूँ मैं अटेंडेंस इनकी ना, 12 बज गए. तो अभी 3 मिनट हैं, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर कोई और ज्वाइन है. हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ले लो. ठीक है, ओके. सो लेट्स सी लेफ्ट ज्वाइन. अब ये सारे के सारे ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही मिलेंगे कि एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ इनर ज्वाइन हो रहा है, एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है, या दूसरी टेबल का तीसरी टेबल के साथ राइट ज्वाइन हो रहा है. तो अगर आपको ज्वाइन समझ में आ गया कि दो टेबल ज्वाइन हो रही है, क्योंकि एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करने हैं पेन और पेपर पे, तो अगर आपको समझ में आ गया कि ये वाला टेबल इस वाले टेबल से लेफ्ट ज्वाइन से ज्वाइन है, अच्छा ज्वाइन के केस में वर्चुअल टेबल ऐसे बनेगी, तो अगर आपने वर्चुअल टेबल सही बना ली तो कंस्टेंट लगाना तो बाएं हाथ का खेल है. सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो है वर्चुअल टेबल. वर्चुअल टेबल तभी बन पाएगी जब आपको लॉजिक क्लियर होगा कि लेफ्ट ज्वाइन के केस में या राइट ज्वाइन के केस में या नेचुरल ज्वाइन के केस में वर्चुअल टेबल को कंसेप्चुअलाइज कैसे करना है. ठीक है, तो प्लीज जैसे आपने नेचुरल ज्वाइन सुना या कोई डाउट नहीं है, उसी तरीके से आप लेफ्ट ज्वाइन सुनना. ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, जैसे कि लेफ्ट वाली बात कर रहे हैं कि इट विल सेलेक्ट फ्रॉम टेबल लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू एंड ऑन टेबल. अब देखो यहाँ पर मैंने दो चीज हाईलाइट की है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेफ्ट ज्वाइन होगा इट विल नॉट वर्क विदाउट ऑन क्लॉज. दैट मींस आपको ऑन क्लॉज लगाना ही पड़ेगा.
आपको ऑन क्लॉज लगाना ही पड़ेगा। नेचुरल ज्वाइन के केस में भी आपने ऑन क्लॉज नहीं लगाया था, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन के केस में ऑन इनबिल्ट होता है, तभी तो वो इक्वल कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है? अगर आपने लिखा पी नेचुरल, मैं एनजे लिख रहा हूं, नेचुरल ज्वाइन क्यू, तो वहां पर बैकएंड पे ये समझ में आ रहा है उसको, ऑन पी डॉट डी इज इक्वल टू क्यू डॉट डी। ये वाला पोर्शन हम नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, इतना वाला सेक्शन, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में ये इनबिल्ट होता है। नेचुरल ज्वाइन में ये इनबिल्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल ज्वाइन में हम एक्स्ट्रा ऑन क्लॉज नहीं लगाते हैं, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन का जो सिंटेक्स है हमें ऐसे ही बना के दिया गया है कि उन्होंने उसको ऑन क्लॉज इनबिल्ट करके दिया है। लेकिन जो लेफ्ट ज्वाइन होता है उसमें आपको ऑन क्लॉज एक्सप्लिसिटली लगाना पड़ेगा। सो दैट इज आई एम राइटिंग विल नॉट वर्क विदाउट द ऑन क्लॉज। इतनी डिटेलिंग आपको किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगी जितनी मैं बताने की कोशिश कर पा रहा हूं, ठीक है। नाउ virtual table is created by picking all the values from the left table, all the values from the left table plus matched values from the right table। और यहां पर एक चीज और नई आ गई, और null in case of no match। in case of no match, two tuples are said to be matching if the value of the common column is the same। ये पुराना वाले क्लॉज है, टू टपल्स आर सेट टू बी मैचिंग इफ द वैल्यू ऑफ द कॉमन कॉलम इज द सेम। दैट मींस यहाँ पर एक चीज आई है, वैसे ही काम कर रहा है जैसे नेचुरल ज्वाइन कर रहा है, कि तभी एप्लीकेबल होगा जब दो कॉलम कॉमन होंगे, उन दो कॉलम के बीच में सेल वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई सेल है जहां वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वहां पर नल रिटर्न कर देगा। क्या करेगा? नल रिटर्न कर देगा। तो दैट मींस अगर आप लिख रहे हो पी लेफ्ट ज्वाइन क्यू, पी लेफ्ट में है और क्यू राइट में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी कहां पर है? लेफ्ट में है, क्यू राइट में है। आपको क्वेश्चन मिला पी लेफ्ट ज्वाइन क्यू, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में गलती से कर दिया क्यू लेफ्ट ज्वाइन पी, आंसर चेंज हो जाएगा आपका, आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपने लेफ्ट में क्यू कर दिया और राइट में पी कर दिया। इसलिए जो भी ऑर्डर आपको गिवन है आपके एसक्यूएल क्वेरी में इनफी क्यू के एग्जाम में, काइंडली उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर निकालना, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं आपको फोर्सफुली बता रहा हूं कि पी लेफ्ट ज्वाइन क्यू और क्यू लेफ्ट ज्वाइन पी दोनों में धरती आसमान का अंतर है। सो जो टेबल लेफ्ट में है उसको हमेशा लेफ्ट में रखो, और जो टेबल राइट में उसको हमेशा राइट में रखो। समझ आ रहा है यहां तक? पारुल सर बढ़े आगे। पारुल सर, एनी कंफ्यूजन्स? एनी कंफ्यूजन्स? लेफ्ट ज्वाइन में कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नो सर। ओके सर, हम्म, am I audible to you? yes sir, what happened? Have I asked anyone to write their roll number? No. Hello? Hello. Sir, have I asked anybody to write their roll number? I don't know. You were explaining and they were busy in writing their roll number. No sir, you haven't asked. I don't know why, what the kind of behavior they are showing. Even I have typed a message also, don't type. And again, I don't know why. So my question is this, is left join clear to you, all of you? अब अभी किसी से क्वेश्चन पूछे, लेफ्ट ज्वाइन क्लियर है आप सबको? रिप्लाई करो भाई, लेफ्ट ज्वाइन जो सर ने बताया, लेफ्ट ज्वाइन क्लियर है आपको? क्लियर, ठीक है। रोशन चौधरी क्लियर, ठीक है, गुड। हर्षुल गुड गुड गुड। मिलन गुड, ठीक है। सर इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। अब हम इनको 1 मिनट का समय दे देते हैं, जो बच गए बाकी वो अपना रोल नंबर टाइप करते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर, आप मुझे ओके, बता दीजिएगा जब स्टार्ट करना है। ठीक है सर, ठीक है। जितने भी बच्चे रोल नंबर टाइप कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो भाई, ये जो इन्फीट्यू का पेपर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। पूरी इंडिया में ये नेशनल लेवल पे कराया जाता है, और बहुत इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप लोग। इन्फोसिस, अब ऐसे नहीं है कि इन्फोसिस आपके कैंपस में आके आपका इंटरव्यू लेके आपको जाएगा, ऐसा तो इन्फोसिस ने पिछले 3-4 साल पहले ही खत्म कर दिया। और पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड उठाते हैं तो ईसीएन के बच्चे ज्यादा थे क्वालिफाई रेट में CSIT की कंपैरिजन में। तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कितना लिमिटेड बन के रह गया है,
ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप इन्फोसिस में जाओ, और इन्फोसिस इज सच अ ब्रिलियंट ब्रांड। अगर आप अभी 4 लाख के पैकेज पे जाओगे, सो मे बी विद इन 2 years यू कैन हैव अ पैकेज ऑफ डबल व्हाट यू आर अर्निंग मे बी आफ्टर 6 months. So understand the necessity of the hour, okay, and try to make your reflections on the basis of that. So it's not like this that you may be in the passive mode and we are teaching you. No, it's not like this. If we are in the active mode, you have to be in the active mode, and that is the only mool mantra of getting success in your coming future life. Maybe for Infosys, maybe for TCS and many more companies which are coming to your campus to recruit you. The only criteria is if you are clear with your concepts, they will not create any kind of barrier, whether you are from IT department or maybe from CS or from EC. For them, you are like a simple slate. Okay, so when you move to the organization which is like Infosys, so they will create their own description on that clean slate. When coming to the campus, these interview criteria or these qualifying criteria, which is your written test, is just to make you aware that whether you may be able to work in Infosys or not, or maybe on other organizations. So we are saying that just clear, हम ये नहीं कह रहे कि आप टॉप करिए इन्फोसिस के एग्जाम में, just clear the exam maybe on the edging side. आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, then you are more entitled to clear the interview. Okay, so अगर फर्स्ट राउंड ही नहीं क्लियर होगा, then what is the purpose of interview? So my agenda is to make you very very aware of this, कि please be focused whatever we are teaching in these classes, and SQL is very very important for InfyTQ exam. Yes, sir. Hmm. I think we can start, sir. Okay, so let's see the remaining points. So in left join there is duplicacy. नेचुरल जॉइन में डुप्लीकेसी नहीं होता, क्रॉस जॉइन में डुप्लीकेसी होता है, इनर जॉइन में डुप्लीकेसी होता है, नेचुरल जॉइन में डुप्लीकेसी नहीं होता है, लेफ्ट में भी डुप्लीकेसी होता है. एंड keep both the copies of the common column side by side copies, all columns from both the tables. Let's see this. This is my P table and this is my Q table. The condition is P left join on P dot D equal to Q dot D. So these is the complete syntax of my left join. So what I discussed, 11, 12, 80, 31 corresponding to 12, 13, 23, 11, 12, 80, 31 corresponding to 31, 16, 14, 11, 12, 80, 31 corresponding to 15, 12, 19. लॉजिक के हिसाब से लेफ्ट जॉइन कब काम करेगा, जब दोनों सेल कॉमन होंगी, और बाकी जो बची उनके लिए क्या करेगा, इट विल रिटर्न या इट विल सिंपली पुट नल. सो लेट्स सी द फाइनल ट्रुथ टेबल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. लेट्स सी. सो 11, 12. हाँ, एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ. सिंपल टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप P लेफ्ट ज्वाइन Q लगा रहे हो, तो मैथमेटिक्स तो लगा ही रहे हैं. सिंपल ये याद रखो कि जो लेफ्ट वाली टेबल होंगी उसके सारे टपल्स वर्चुअल टेबल के अंदर जाएंगे. लेफ्ट वाली टेबल के सारे टपल्स वर्चुअल टेबल के अंदर जाएंगे. देखो आगे सारे के सारे 11 भी आ गया, 41 वाला टपल भी आ गया और 12 वाला भी आ गया. ठीक है, राइट टेबल से सिर्फ वही टपल जाएंगे जहां जहां पर वैल्यू मैच हो रही है. राइट टेबल से सिर्फ वही टपल्स जाएंगे वर्चुअल टेबल में जहां जहां वैल्यू मैच हो रही है. तो 31 के कॉरस्पॉन्डिंग यही मैच नहीं हो रहा तो नहीं जाएगा. 31 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मैच हो रहा है तो ये अंदर आ गया. 15 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मैच नहीं हो रहा तो नहीं जाएगा. 51 के कॉरस्पॉन्डिंग ये नहीं मैच हो रहा तो नहीं जाएगा. कौन सा जाएगा, 15, 12, 19. अब देखो 29 के कॉरस्पॉन्डिंग ना तो ये मैच कर रहा, ना ये मैच कर रहा, ना ये मैच कर रहा. तो क्या करेंगे, वी सिंपली पुट नल, नल एंड नल. आई हैव लेफ्ट ज्वाइन, तो सबसे सिंपल है. लेफ्ट के सारे टपल, राइट से वही वही टपल्स जाएंगे जहां जहां पर वैल्यू कॉमन हो रही है. अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, नल वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे. तो दिस इज माय वर्चुअल टेबल एंड आफ्टर पुटिंग द कंस्ट्रेंट दिस इज माय फाइनल रिजल्ट सेट. समझ आ गया लेफ्ट ज्वाइन? ये एग्जांपल समझ आ गया हो तो बताओ जल्दी से. बेटे लेफ्ट ज्वाइन समझ में आया? एग्जांपल जो सर ने दिया आपको लेफ्ट ज्वाइन का जो एग्जांपल दिया, क्लियर हो गया? प्रियांशी ने बोला है रिपीट, और बाकी लोग? यस सर, एक्सेप्ट प्रियांशी, ऑल आर सेइंग समझ में आ गया. ओके, तो देख लो एक बार. मैं बोल रहा हूं लेफ्ट ज्वाइन के केस में लेफ्ट ज्वाइन तभी लगेगा जब कॉमन कॉलम्स होंगे. ठीक है, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन क्या बोल रहा है, लेफ्ट ज्वाइन ये बोल रहा है कि जो लेफ्ट वाली टेबल है उसके तो सारे के सारे टपल आएंगे वर्चुअल टेबल में, और राइट
टेबल से सिर्फ वही टपल्स आएंगे जहां जहां पर वैल्यू मैच दिखा रहा है। तो देखो 11 12 80 31 41 23 92 15 12 16 67 29, ये तो सारे के सारे टपल आएंगे ही आएंगे क्योंकि लेफ्ट टेबल है। मैंने क्या बोला, लेफ्ट ज्वाइन करते हुए लेफ्ट की पूरी टेबल वर्चुअल टेबल में जाएगी, राइट से सिर्फ वही टेबल आएगी जहां जहां पर मैचिंग हो रही है। तो अब देखो 31 के कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। 29 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं मैच हो रहा, तो हम क्या कर देंगे, जो 29 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी इनमें सब में क्या कर देंगे, नल पुट कर देंगे। प्रियांशी क्लियर है बेटा, आप बताओ जल्दी से। रिप्लाई करो बेटे। क्लियर है सर। ठीक है, सो सर लेट्स कम टू लास्ट द, 5 मिनट बचे हैं, मेरे ख्याल से अब हम बच्चों से डाउट्स ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, ठीक है, यहीं पर रोक देते हैं। हाँ हाँ, यही आप रुकते मुझे हैं। बच्चों से बोल दीजिएगा कि याद रखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हमें राइट ज्वाइन से